In this video, we will start our second unit, which basically discuss about the second step of risk management process, that is risk analysis and measurement of risk. So first step, we know that we need to identify the risk. A risk manager, after identifying the risk faced by any organization, then he needs to analyze the potential frequency and severity of these loss exposures. So what is the frequency? That is number of times the risk is repeating itself, and the severity, that is the amount of monetary loss. So these things need to be analyzed. Previous loss history will give valuable information in this regard. That is, it helps in identifying the risk that an organization faces, as well as it also tells about the number of times the risk is occurring and how much is the amount of loss faced by the organization. Though it is very good document which gives us lot of information, valuable information, but it is not always true that future loss will follow the past trends. So therefore, a risk manager, he uses all the available techniques to predict future losses. So forecasting the future losses is a very important and a challenging job for risk manager. To assist risk manager in this regard, various techniques, various methods are available which can help him to sincerely do this job of analyzing the risk. So these tools are basically categorized in three categories. The first being the statistical methods, second is financial analysis methods, and third is additional management methods. We'll start with statistical methods. In statistical methods, we have various other methods like range, variance, standard deviation, coefficient of variation, probability analysis, regression analysis, and forecasting based on loss distributions. These are major statistical methods which are used by risk manager to measure and analyze the risk. They are not, you can say, all in all measures. There can be some more methods which can also be used in combination with these methods to predict or forecast the loss occurrence. Here we will first start with the range. Now what is meant by range? Range is the difference between the largest and the smallest value in the data set. तो जो हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं. रेंज जो है एक तरह का डिस्पर्शन, जो है डेटा में जो डिस्पर्शन है कि वो एक दूसरे से कितने दूर दूर हैं, उसको मेजर करता है. अगर फाइनेंस की टर्म्स में देखें तो रेंज जो है लो और हाई प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है. किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइसेस हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका जो डेटा है उस डेटा में जो लोवेस्ट प्राइस था सिक्योरिटी का और जो हाईएस्ट प्राइस है सिक्योरिटी का, उनके बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे. तो वो हमको रेंज, वेरिएबिलिटी बताएगी कि एक सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो कितना वेरी किया है, लोवेस्ट कहाँ गया और हाईएस्ट कहाँ तक गया. तो जितनी ज़्यादा रेंज है दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है सिक्योरिटी के प्राइसेस में. अगर प्राइसेस स्टेबल होंगे तो रेंज भी कम होगी. लेट्स सपोज किसी सिक्योरिटी का प्राइस है 100,
और उसकी लोवेस्ट वैल्यू 95 गई है और हाईएस्ट वैल्यू जो है 102 गई है, तो रेंज कितना हो गया 7। ऑन दी अदर हैंड अगर इसी सिक्योरिटी के प्राइसेस एक बार लोवेस्ट 50 गए हैं और हाईएस्ट 190 गए हैं, तो ऐसे में जो है रेंज बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसी सिक्योरिटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज़ हाईएस्ट प्राइस 190 तक गया है, लेकिन लॉसेस भी बहुत हो सकते हैं क्योंकि लोवेस्ट प्राइस 50 तक गया है। सो अ हाई वैल्यू ऑफ रेंज signifies a higher risk. So the size of range correspond to the security's level of risk. The second method is variance. वेरिएंस क्या है? वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर के बेसिस पे डिनोट किया जाता है। वेरिएंस क्या करता है? इट बेसिकली मेजर्स वेरिएबिलिटी फ्रॉम द एवरेज, यानी मीन से आपकी एक्चुअल वैल्यू, मीन जो है एक्स बार इज़ द मीन वैल्यू, इससे हमारी जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा वेरी कर रही है उसको कैलकुलेट करके देता है। टू इन्वेस्टर्स वेरिएबिलिटी इज़ वॉलेटिलिटी एंड वॉलेटिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क। Therefore, this variance statistic can help determine the risk an investor assumes when purchasing a specific security. तो अगर लार्ज वेरिएंस है तो इसका मतलब क्या है? जो नंबर्स हैं हमारे डेटा सेट में वो मीन से बहुत दूर दूर है, ओके। और अगर स्मॉल वेरिएंस है इसका मतलब ऑपोजिट है, यानी जो मीन वैल्यू है उसके आसपास ही लाई कर रहे हैं। तो आसपास लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ द मीन वैल्यू। ज़्यादा वेरिएंस का मतलब है जो आपकी वैल्यू है वो बहुत दूर दूर लाई कर रही है, ओके। और कम वेरिएंस होने का मतलब है कि मीन के आसपास ही वैल्यू है। तो ये जो है जहाँ दूर दूर वैल्यू है ये शो करता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी इज़ हाई। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम है। वॉलेटिलिटी नहीं है इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबलाइज्ड जो रिटर्न्स होते हैं वो रिस्की नहीं होते, ओके। या तो आपके रिस्की रिटर्न्स हैं या फिर स्टेबल रिटर्न्स हैं। तो रिस्क जो है कम वहाँ पर होगा जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, यानी वेरिएंस कम है या वॉलेटिलिटी कम है, और रिस्क ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ज़्यादा वेरिएंस है। अब वेरिएंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर मीन से हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम आ रहा है हमारा रिटर्न, जो हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उससे मान लीजिए हमारी कम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है? हमारा नेगेटिव रिटर्न है या नेगेटिव वैल्यू हमको मिली है। और अगर उससे ऊपर आ रहा है, हायर आ रहा है, तो वो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क तो है। रिस्क क्या है? रिस्क है कि नेगेटिव रिटर्न्स आने की भी चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएंस ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो वेरिएंस का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो दे आर विद इन अ सेट ऑफ नंबर्स एंड दे आर आइडेंटिकल। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिमिलर है, ठीक है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में से कोई एक कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द वॉलेटिलिटी। दोनों ही वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं, दोनों ही मीन से आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ कितना डिफ़र कर रही हैं, कितना डेविएट कर रही हैं, कितनी दूर हैं, तो वह मेजर करता है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से इट हेल्प्स इन डिटरमिन द स्प्रेड। एवरेज से, एवरेज प्राइसेस, अगर आप एसेट्स प्राइसेस की बात करें तो एवरेज प्राइसेस से हमारा एसेट का प्राइस कितनी ज़्यादा स्प्रेड पे है, कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो जितनी ज़्यादा डिस्पर्शन होगी, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, उतना ही हमारा रिस्क हाई है।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर एस्पेक्ट है, जहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा अपॉन x1। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये भी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रिस्क ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू कम है दैट मीन्स रिस्क इज़ ऑल्सो लेस। देन कम्स द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेजर विच चेक्स द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, यानी एक इवेंट की होने की कितनी चांसेस हैं, क्या लाइकलीहुड है, तो उसको हम जो मेजर करते हैं, जो मेजर है वो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की, हम P से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट हो रहा है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय n। x क्या है? x इज द नंबर ऑफ इवेंट्स लाइकली टू अकर, यानी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लॉस है, इवेंट हमारे केस में क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं, द लॉस एक्सपोजर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कि कितने यूनिट्स जो है हमारे एक्सपोज्ड हैं या उनको डैमेज हो सकता है। सो द इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स लाइकली टू अकर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय x। n क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स हैं। अब सारे के सारे एक्सपोजर यूनिट्स तो डैमेज नहीं होंगे ना, उनमें से कुछ ही डैमेज होंगे। तो n तो डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, और x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इवेंट्स विच विल हैपन। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ vehicle fleet and let's suppose it has 500 vehicles and on an average 100 vehicles suffers physical damage each year। ठीक है, तो 100 टोटल फ्लीट के पास व्हीकल्स कितने? 500। तो दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 500, यानी कि सभी के सभी फुली एक्सपोज्ड हैं डैमेज के लिए। लेकिन इनमें से जो डैमेज होते हैं तो उसका जो ऑन एन एवरेज निकल के आया है दैट इज़ 100। तो x की वैल्यू है 100, तो प्रोबेबिलिटी विल बी x अपॉन n, दैट इज़ 100 अपॉन 500। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लीट व्हीकल विल बी डैमेज्ड इन एनी गिवन ईयर इज़ इक्वल टू 0.20, और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में लिखें तो 20%। अब इसमें जो है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में ये जो इवेंट्स हैं दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो सम इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स द अकरेंस ऑफ विच डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, कि एक इवेंट जो है दूसरे इवेंट की हैपनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी हैज़ 2 plants, one in Delhi and the other one being in Hisar, so if there is a fire in one plant situated in Delhi, it will not cause any damage to the other plant situated in Hisar. Okay, so if we want to calculate the probability that there will be a fire in both the plants at the same time, like if there is a fire in Delhi plant, so there will be a damage to the plant in Hisar as well, so that probability will be very low. For example, here let's suppose the probability of fire in plant in Delhi is 0.4 and probability in the other plant that is in Hisar it is 0.5। ये individual probabilities हैं दोनों की। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही प्लांट्स में फायर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी विल मल्टीप्लाई दीज टू एंड द वैल्यू इज़ 0.002, यानी कि 0.2%। बहुत कम हो गई। इंडिविजुअली दोनों की थी 0.4 एंड 0.5, लेकिन दोनों एक साथ डैमेज हो जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है, 0.2% के करीब है।
द सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि जिनकी अकरेंस जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग में फायर है तो उससे एडजेसेंट जो बिल्डिंग है उसमें भी फायर होने के चांसेस हैं, और ऐसी प्रोबेबिलिटी कि दोनों की दोनों जल जाएंगी, अगर ये निकालनी है तो कैसे निकलेगी? लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर इन वन बिल्डिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। अब जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है दैट देयर विल बी फायर इन सेकेंड बिल्डिंग, बट ये कंडीशनल है, गिवन दैट देयर इज़ अ फायर इन फर्स्ट बिल्डिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट विल इंक्रीज, दैट इज़ लेट्स सपोज 0.4। तो जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी दैट बोथ द बिल्डिंग्स विल बी डैमेज्ड, that will be, we will multiply it and it will be 0.012 or 1.2%. Now if we compare these two, यहाँ पर आप देखिए कि दोनों को कंबाइन किया, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंबाइन की तो वो रिड्यूस हो गई, लेकिन डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंबाइन की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो गई। इंडिविजुअली वो इतनी नहीं थी, लेकिन कंबाइन हुई तो वो इंक्रीज़ हो गई। So that is because they are dependent events. Next is mutually exclusive events. Mutual exclusive events होते हैं जिनकी occurrence जो है, एक event की occurrence, it precludes the occurrence of the other event. So for example, there is a building, it can be damaged by fire as well as flood. But if it is damaged by fire, then it will not be damaged by flood. तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने की बजाय वी विल बी एडिंग देम। सो लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी दैट द फायर डिस्ट्रॉयज द बिल्डिंग, इट इज़ 0.02, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लड डिस्ट्रॉयज द बिल्डिंग, इट इज़ 0.01। द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 0.03। तो दोनों में से इंडिविजुअली तो उनकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की होने की इतनी थी, लेकिन कंबाइन करेंगे तो दिस बिकम 3%। तो किसी न किसी कारण से तो बिल्डिंग डैमेज हो ही सकती। सो बाय ईदर ऑफ द टू द प्रोबेबिलिटी इज 3%। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस actually characterizes the relationship between two or more variables and then uses this characterization to predict the values of a variable. Now here one variable is dependent variable and it is hypothesized to be a function of one or more independent variable. This x is independent variable. It can be more than one, like x1, x2, x3, etc. So for example, if we want to predict the value of number of workers getting the compensation claims, so y, the dependent variable will be number of worker compensation claims, and independent variables can be like number of employees. तो ये factors हैं जिस पे कि हमारा compensation depend करता है। number of employees कितने हैं, payroll क्या है, या कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, आवर्स वर्क। लेट सपोज हमारे पास 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा वी विल कैलकुलेट कि कितना क्लेम पहले लिया है और इनकी वैल्यूज़ क्या है। इसके बेसिस पे हम B0 और B1, B0 क्या है, कांस्टेंट है, और B1 जो है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए हमें इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कॉम्पनसेशन की, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। हमें B0 की वैल्यू मालूम है, B1 की मालूम है, और सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनकी भी वैल्यूज़ मालूम है, तो वी कैन फोरकास्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम्स। देन लास्ट इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस। A loss distribution is a probability distribution of losses that would occur. This method generally it works well if losses tend to follow specified distribution. For example, generally जो है normal distribution curve जो है ये mostly इसी को हम normal यानी कि ये mean होता है, इसको बीच में से divide करता है। ये वाला एरिया भी that is also 0.5 probability और ये वाला भी 0.5।
एंड इफ़ द सैम्पल साइज इज़ लार्ज। तो जनरली ये वहाँ वर्क करता है जहाँ पर कोई स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सैम्पल साइज जो है काफ़ी बड़ा हो। तो इस तरह की लॉस फॉरकास्टिंग जो है, अगर हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, लाइक हमें मीन पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो, तो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, यानी कि लॉस फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमें मीन मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, तो हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीन इज़ 47 और हमको प्रेडिक्ट करना है कि 55 नंबर ऑफ़ इवेंट्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो x विल बिकम 55, x बार इज़ ऑलरेडी 47, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है, z की वैल्यू आ जाएगी। तो जो z की वैल्यू आएगी वो हम z के जो टेबल्स बनी होती हैं प्रोबेबिलिटी कर्व का एरिया, वो फाइंड आउट करने में z की टेबल्स से उसका वैल्यू देखेंगे। ये तो 0.5 है ही, टेबल से हम इस एरिया को भी कैलकुलेट कर लेंगे और 0.5 में हम उसको ऐड कर देंगे उस वैल्यू को, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। So these are our statistical methods. Next we will discuss financial analysis method in the next video.